بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ فیصل آباد کی گلشن مدینہ کالونی ہے جہاں پر شیخ کاظم جواد صاحب رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور 4 بچوں کے ساتھ۔ وہ کیسا رہتے تھے، ان کو کیوں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا یا کیا معاملات تھے، ان کے ڈرائیور جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جو ان کے ساتھ دن رات رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، وہ شخصیت کیسی تھی، گھر میں مسئلہ کیا تھا، کس طرح رہن سہن تھا، وہ سب کچھ ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام آپ کا نام کیا ہے؟ جی شاہ سعود شاہ سعود شاہ سعود صاحب۔ کاظم جواد صاحب وہ کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ میرا تو تعلق ان سے تقریباً 20-22 سال کا تھا۔ اچھا ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر ڈرائیوری کرتے تقریباً 4-5 سال ہو گئے مجھے۔ اچھا، تو یہ میرا ان سے تعلق تھا اور کس طرح کی شخصیت ہے؟ بہت نفیس آدمی تھے، بہت شریف آدمی تھے۔ مطلب میں ان کی کون سی چیز بتاؤں اور کون سی چیز نہ بتاؤں، تو بڑا مطلب انتہائی نفیس آدمی تھے۔ ہمیں مطلب انہوں نے ایسے رکھا تھا جیسے اپنے اولاد کو انسان رکھتا ہے۔ اچھا حالانکہ ہم ڈرائیور تھے، کہیں جانا مطلب اکثر ہم موٹر وے پہ جاتے تھے، کافی انہوں نے لینی تو مجھے بھی کافی لے کے دینی، چائے لینی تو مجھے بھی چائے، جو سی چیز خود کھاتے تھے وہی چیز ہمیں لے کر دیتے تھے۔ کھانا اگر اچھے سے ریسٹورینٹ میں گئے تو وہاں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، نہیں تو عموماً اکثر ڈرائیور میں دیکھتا ہوں وہ ڈرائیور کہیں کھڑا ہوتا ہے اور باس کہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ تو اکثر مجھے 1-2 ڈرائیور وہ بھی ملے تھے، ادھر آئے تھے کل، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی نے مجھے بولا کہ یار وہ ادھر ڈرائیور تھا ان کا پرانا، وہ آیا تھا کل، وہ بھی یہی بول رہا تھا کہ یار جہاں خود کھاتے تھے وہیں ہمیں کھلاتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اکثر وہ مطلب وہ ہمیں ڈانٹتے تھے کہ آپ نے آج سوٹ کیوں ایسے میلا پہنا ہوا ہے، جوتے کیسے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں جوتے سوٹ وغیرہ، یہ سوٹ بھی ان کا ہی میں نے پہنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سوٹ آپ نے ان کا پہنا ہوا ہے، تو یہ تو نیا سوٹ ہے، تو نہیں ہمیں نیا دیتے تھے، پرانا سوٹ تو کبھی پرانا نہیں دیتے پرانا تھے۔ میں نے ان کی کوئی ایسا سوٹ یہ دیکھیں کوئی بٹن نہیں ٹوٹا، وہ تو مطلب 1-2 دن خود پہنتے تھے، اس کے بعد مجھے گفٹ کر ایک دیتے دو تھے۔ دن وہ خود پہنتے تھے، ہاں اس کے بعد آپ کو گفٹ کر ہاں۔ دیتے تھے۔ آپ کے ساتھ ان کا رویہ باس والا ہوتا تھا، بھائیوں والا ہوتا تھا، ایک ملازم کی حیثیت سے آپ کو ٹریٹ کرتے تھے، کس طرح رہتے تھے؟ نہیں ہمیں تو یقین کرے کہ میرا باپ فوت ہوا تھا تو میں صرف اور صرف جنازے پہ گیا اور صرف 15-20 منٹ میں رویا اپنے باپ کے جنازے پہ، اور آج 4 دن ہو گئے میں ادھر رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہا کہ ان کی نیکیاں ہیں میرے ساتھ، میں ان کی کون سی نیکیاں آپ کو بتاؤں اور کون سی نیکیاں۔ نفیس آدمی تھے یہ، بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی ڈرائیور تھے۔ ان کے پاس یہ جب ادھر ڈرائیوری کے لیے آیا تھا تو اس کے پاس 3-4 سوٹ تھے۔ اب آپ الماری کھول کے دیکھیں میں 20 سوٹ ہوں گے، اور اعلیٰ قسم کے مہنگے سوٹ، یہ نہیں کہ 500-600 والا سوٹ، 5-6 ہزار والا سوٹ، جیسے خود پہنتے تھے ویسے ملازموں کو وہ آپ کا دیتے تھے۔ کہنا ہے کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں، وہاں کون سی 4-5 باتیں یاد آ رہی ہیں؟ ان کی نیکیاں ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کیا، وہ تو یہاں تو جب جنازے پہ ایسے لوگ رو رہے تھے جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں تھے، عزیز بھی نہیں تھے، جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ بھی رو رہے تھے، وہ ان کے ساتھ کوئی نیکیاں ہوں گی، ہم تو یہ خلا نہیں پورا ہو سکتا۔ یہ شیخ کاظم جواد صاحب کا گھر ہے، یہاں پہ کتنے لوگ رہتے تھے؟ ادھر جس دن واقعہ ہوا اس دن 2 بچے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی، ان کی وائف تھی، تو وہ بچے اسکول سے آئے تھے، وہ سو گئے، تو باقی نیچے ان کی فیملی تھی، ایک باجی تھی، 2 ان کی بیٹیاں تھیں، ایک باجی لاہور سے آئی تھی، ان کو بھی میں لاہور سے لے کر آیا تھا، تو وہ بھی نیچے تھے۔ تو ایک ان کی بیٹی کی ایج بتائی جا رہی ہے 22 سال تھی، ایک جی بیٹی وہ کی بتائی جا رہی ہے ہاں 20 سال تھی اور پڑھی لکھی تھی، وہ ایک تو ان کے ساتھ ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ بچوں کے ساتھ تو بہت پیار کرتے، بہت بچوں کے ساتھ، بہت، یہ نہیں کہ وہ 4 بچے تھے نا، 2 بیویاں تھیں، ایک جیسا سلوک، بیویوں کے ساتھ ہاں بھی؟ ایک جیسا جب سلوک۔ ملازموں کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے تو سوچے آپ بچوں کے ساتھ وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، آپ یہ سوچیے خود۔ تو ہمارا یہ حال، یہ دیکھو، یہ نئے نئے سوٹ اور بال کنگھی کر دیں،
गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगा दें। हम तो हम इसके पीछे ना बहुत उदास है, बहुत रोया है हम लोग। आपको देख के नहीं लगता कि आप इस घर के मालिक नहीं हैं या मुलाजम हैं या ड्राइवर हैं, तो ये रहन सहन उनकी तरफ से था? हाँ जी, ये सारे उनकी तरफ से था। उन्होंने खुद ये जारी किया हुआ था कि आप लोगों ने बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, कि बाहर हमको ये कोई ये ना बोले कि ये हमारा ड्राइवर है। ये लोग बाहर के लोग ये भी ना बोले कि ये ड्राइवर है, कि ये शिकायत मैं कभी भी ना सुनी। बाहर क्या बताते थे कि ये कौन है, ये कौन है? आपके हवाले से कोई बात होती थी? अगर किसी हमें को नहीं बाज़ नहीं औक़ात नहीं फ़ख्र से लोग बताते हैं, ये मेरा ड्राइवर है, ये नहीं मेरा मुलाज़िम है, आपके हवाले से नहीं क्या बताते थे? नहीं, ये कभी भी नाम उन्होंने लेके नहीं पुकारते बोला। थे, नाम नाम। से बुलाया, ये नहीं बुलाया कि ये ड्राइवर है इधर आओ या ड्राइवर उधर जाओ, ये कभी भी उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने जब बुलाया बहुत प्यार से और बहुत हराम से नाम लिया और बुलाया है। ईद पे, किसी खुशी पे, शब-रात पे आपके साथ कैसा रवैया था? बहुत अच्छा उन्होंने ईदी भी बहुत अच्छी दी है हमें, और खाना भी बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है। इनके बच्चों का जो हमारे साथ जो प्यार था, बाजी लोगों का हमारे साथ बहुत प्यार था। जब हमने फ़ोन नहीं किया दिन में, तो उन लोगों ने हमको खुद याद करवाया कि आप लोग किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर क्या रहे, खाना है, क्या क्या पीना है। खाना है, क्या पीना है। कभी कभी हम खुद नाराज हो जाते थे, लोग वो बार बार मनाते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे आज, आप कितनी दूर से आए अपने पेट पालने के लिए, आप हमारे साथ रह रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम आप लोग ये बराए मेहरबानी ये काम ना करें, आप खाना खा लें। वो हमारे बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके तौर के मेरा बहुत रखता था, इनसे हर दिन पूछता था कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता। तो ये बोलता था कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सीधा है। तो हमारे साथ वो बहुत प्यार करता था और बहुत प्यार से बात करता था हमारे साथ। नाज़रीन, ये 2 लोग हैं जिनको काज़म जवाद साहब ने अपने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ था, और यहाँ तक कि इनके कपड़ों का ख़्याल करना, इनके खाने-पीने का ख़्याल करना, इनके बैठने-उठने का ख़्याल करना, जिस तरह इन फ जिस तरह इस भाई ने बताया कि हमें साथ बटा के खाना खिलाते थे। तो फिर क्या वजह थी बच्चों से भी इतना प्यार, और जो बंदा आपसे इतना प्यार करता है तो वो अपनी फैमिली से उससे ज़्यादा प्यार करता होगा और इतनी मोहब्बतें बाँटता होगा। फिर कौन-सी वजह आपको लगती है कि वो इस इक़दाम पे मतलब है सोचा उन्होंने और इतना बड़ा इक़दाम कर दिया? यही तो उनके दोस्त भी इधर रो रहे थे। साबित सैयद है उनके दोस्त, माशाल्लाह मिल ओनर वगैरह हैं और बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने भी यही बोला कि काश हमें बता देता, हमसे शेयर करता, हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालते, कोई तरीका निकालते। तो उसने अपनी दिल की बात बताई नहीं दोस्तों को। आपको अगर भी नहीं बताई? नहीं बताई, हम हमें पता था तो हम शायद ये, हमें तो उसने घर से निकाल देना कि आप उधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। तो अगर हमें पता होता तो अगर हम, आपको वो बताते तो आप क्या करते? मैं ज़ाहिर है इतने लोगों की जाने की तो मैंने बचानी थी जान। जो कुछ भी होता वो आप करते उनके हाँ, लिए? मैं कुछ भी गोली के आगे खुद खड़ा हो जाता। क्या आज हम ये दिन देखना पड़ता है, अच्छा लगता है हमको कि हम दिन भर रोते हैं, उसके पीछे हम रोने लग जाते हैं, जो बात करते हैं हमारे साथ हम रोते हैं। जब वो उनकी याद आते हैं, तो जब उसका गाड़ी अभी आ गया हमने देखे, तो फिर भी हमारे आंसू निकलना शुरू हो गया। तो आप सोचिए ज़रा कि बाहर लोग जब इतनी तारीफ़ें करते हैं, हम तो इसके साथ 5-6 सालों से रह रहे हैं इनके घर में, तो सोचिए हम कैसे। आखिरी दिन जब ये वाक़या हुआ, आपसे जवाद साहब की क्या बातचीत हुई? मेरे साथ तो यही बात हुई कि ये कफ़ेट ड्राइवर ये इसको बोला कि आप अम्मी जी को बहन की तरफ छोड़ो, और ये छोड़कर आ गया। और जब ये छोड़कर आया तो मुझे तकरीबन 1 घंटे बाद कहा कि आप माँ जी को ले आओ। तो मैं निकलने लगा था, तो उन्होंने बोला कि मैं फ़ोन करूँगा तो तुमने आना, नहीं तो तुमने नहीं आना। तो हम फिर भी उस डरते आए हैं। गुफ्तगू में आपको लग रहा था कि आज जो साहब हैं, वो कोई ऐसा गुस्से वाला काम करने लगे? नहीं, नहीं, वो उनका ऐसे ही था जैसे बिल्कुल फ्रेश, महसूस ही नहीं होने दिया। आपको जब उन्होंने कहा कि वालिदा साहिबा को छोड़ आएँ, तो क्या कहा? उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि कफ़ायत तुमने ना माजी को बाजी की तरफ छोड़ना है, और फिर तुमने आना है स्कूल से बच्चे ले ले घर आ जाए, बस माँ मुझे। जी रास्ते में आपके साथ जा रही थीं, तो उनको कोई शक हुआ, कोई बात की उन्होंने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ बात भी ना हुआ है और ना उन्होंने कुछ बताया है, बिल्कुल फ्रेश घर से निकला है, उधर पहुंचे आराम से, मैं घर आया हूँ दोबारा फिर भी फ्रेश था वो। कुछ दिन पहले उनका साहबज़ादा जो छोटा मूसा था, उसकी सालगिरह थी, आपके इल्म में है?
जी बढ़िया, मतलब धूमधाम के साथ उसमें वो बच्चों के साथ बहुत सब बच्चे उस सालगिरह में शामिल थे, हाँ बिल्कुल शामिल थे। तो बड़ी बेटियों के साथ किस तरह रहते थे? बड़ी मैं वो चारों बच्चों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता तो अब आप क्या सोचते हैं कि कौन-सी वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? कुछ समझ आती है आपको? क्योंकि आपके साथ वो ज़्यादा टाइम उन्होंने गुज़ारा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी मुझे कोई शक शुबा होता तो मैं घर से निकल दूंगा। मैंने लेट जाना था उधर, मैंने नहीं जाना, मगर मुझे उन्होंने किसी को शक नहीं होने दिया। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई गुस्सा में आए हों, कोई झगड़ा हो, कोई बातचीत हुई हो, कभी आपने ज़ाहिर बात है उनके साथ ही टाइम गुज़ारते थे, तो कैसा वो इस तरह का गुस्सा आता था तो क्या करते थे? वो बहुत मतलब नफीस आदमी थे, मैंने कभी उनको उन पे भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उसने ना दिल में कभी बात नहीं रखी, अगर गुस्सा भी किया ना दिल में बात नहीं रखी, बस 2 मिनट के बाद फिर ठीक हुआ है। उन्होंने फोन किया कि फलाना बंदा तू किधर है, आ जाओ ये काम करना है, आ जाओ वो काम करना है। मतलब उन्होंने दिल में कभी बात रखा नहीं है। आज जवाद साहब के हवाले से क्या बात करेंगे, क्या इज़हार करेंगे? अगर वो सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में? मैं उनकी मैं वो सबसे मोहब्बत करते थे, सबसे मोहब्बत आप करता उनको क्या करेंगे? किस तरह याद करें? मैं मैं क्या बताऊँ आपको, मैं उनकी मेरे साथ उनकी बहुत नेकियां हैं। मैं तो मतलब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे ऐसा मैं कहता अभी आवाज़ आएगी कि सऊद सऊद अभी आवाज़ आएगी। तो अभी मैं उन्हीं की गाड़ी साफ कर रहा था, बाहर से आया हूँ, तो मेरे से सफाई नहीं हो रही थी गाड़ी कौन-सी ऐसी बात है जो सबसे ज़्यादा याद आती है उनकी? उनकी। आपका नाम लेना या आपको खाने के लिए पूछना या आपके लिए ये पूछना कि आपने घर कब जाना है, छुट्टी माँगनी, कोई ऐसी बात जो समझते हैं कि यार ये मुझे सारी ज़िंदगी बहुत याद आएगी। मुझे मेरे से मैं तो वही बार बार कहूंगा ना कि मेरे से नेकियां मेरे साथ नेकी नहीं, काफी लोगों के साथ मैंने आपको बताया कि इधर ऐसे ऐसे लोग रो के गए हैं जो उनके रिश्तेदार नहीं थे, आखिर उन लोगों के साथ वो नेकियां ही थी जो वो नेकियां रो रही थी। आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? उनको अगर वो सुन रहे हों तो आप क्या कहेंगे? अब वो दुनिया से चले गए हैं, वो वापस नहीं आएँगे, आप क्या इज़हार करेंगे कि मैं उनकी मोहब्बत में कोई एक मैं नफ़स उनकी मोहब्बत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनको हमेशा याद रखूँगा और हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। इस तरह के लोग मैं बहुत कम देखता हूँ कि वो अपने मुलाज़िमों के साथ ये सलूक करता है जो उन्होंने हमारे साथ किया है। और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूँगा कि इनके बच्चे जो मूसा था वो सबसे ज़्यादा हमारे करीब था, वो भी हमारे साथ बहुत प्यार करता था। और बाकी घर वाले जो रह गए, जो हमारे बाकी लोग थे, वो लोग भी हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने तो आपको पहले एपिसोड में बताया कि उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार किया है, क्योंकि इस तरह उन्होंने हमारे ऊपर कोई इस तरह जुल्म नहीं किया कि हमको दुख पहुंचाए। और जो हमारे भाई हैं, अगर हम घर से उनके साथ भूखा पेट निकला है तो उन्होंने रास्ते में, अगर उनको मौका नहीं मिला है तो उन्होंने हमें पैसे दिया है 1000 1200 कि भाई तुमने खाना खाना है, गाड़ी खड़ा करके खाना खाएं, आराम से नमाज पढ़े और फिर आए हम हमारे काम पे लग जाए उन्होंने। 5 टाइम के नमाज़ी थे, आप उनकी मोहब्बत में क्या इज़हार करेंगे? 1 फ़िक्रा, 2 फ़िक्रे। वो नमाजी परहेजी थे। अक्सर हम लाहौर जाते थे या इस्लामाबाद कहीं भी जाते थे बिजनेस के हवाले से या जाते थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको वजू करते, वो घर से बावजू ही निकलते। दो तीन नमाजें तो वो एक वजू नहीं, मतलब एक जो घर से वजू करके जाते थे, मैं अक्सर वजू करता था और वो बावजू रहते थे। ऑफिस में भी जाते थे, मैंने नहीं कभी देखा कि ऑफिस में भी उन्होंने कभी वजू किया हो, काम बावजू रहते उनका थे वो। कपड़े का था कपड़े का काम था। और टेक्सटाइल मिल्स के साथ भी था। जी। कोई पैसे की उनको कमी थी? नहीं नहीं, शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात जो आपने बताई ना, उन्होंने कभी किसी को फ्री बात नहीं कही, ना किसी के साथ फजूल बात की है। वो बहुत आराम से बात करता था और उन्होंने कभी भी फजूल बात किसी से नहीं की। अगर ऊंची गाड़ी में बात वो कभी भी नहीं की। जाता था तो किसी के साथ, किसी के सामने इस तरह कोई शिकायत नहीं की, ना फजूल बातें की है।
मतलब अक्सर लोग ना जब साहब लोग बैठ जाए ना गाड़ी में ये करो वो करो गुस्सा ये नहीं होते सुना हैं वो ऐसे ही। बिल्कुल उन्होंने अभी तक कभी किया नहीं है हमारे साथ